Hello students, I hope you all will be fine. Today in the syllabus, that portion which we are covering in the test of today are phrases and clauses. So we all know everything about phrases and clauses. Let us have a short recall. What are phrases? Phrases are a group of words. It is a group of words. In the evening, up the hill, walking on the street. So group of words. It makes some sense. There are four conditions. Group of words, it should make some sense. Not complete sense, but some sense. Complete sense it will not give, it will give some sense. And it is the part of sentence also, and it does not have a finite verb. We all know what is the finite verb? The main verbs, the basic verbs. Study, learn, see, watch. So it is not, the finite verb is not also there. It is first of all, it is group of words. It makes some sense, not complete sense. It is a part of a sentence, and it does not have a finite verb. Four conditions are there, and one condition I forgot to write. I am writing here. It cannot stand on its own. It cannot stand on its own. मतलब कि ये जो है कभी भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा. इसको किसी के डिपेंडेंस की जरूरत होगी, किसी के साथ ही आएगा. अगर मैं ऐसे करूँ इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि सुबह में. बट व्हाट सुबह में? इसके साथ हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तभी इसका कंप्लीट मीनिंग हमको पता चलेगा. दैट इज वाई इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेजेस: नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड एडजेक्टिव फ्रेज. नाउन फ्रेज हमको पता है, जो नाउन की तरह एक्ट करें. जैसे हमने कहा टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, किसी की गलती ढूंढना आसान है. तो टू फाइंड फॉल्ट ये पूरा फ्रेज की तरह आ रहा है ना. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. और जब हम इनको उठाएं, किसी की गलती ढूंढना, इट इज अ नाउन. किसी की गलती ढूंढना, दैट इज अ नाउन. ठीक है. इसी तरह से वॉकिंग इन फ्रेश एयर इज हेल्दी. वॉकिंग इन फ्रेश एयर, इट्स ऑल्सो अ नाउन, एक्टिंग एज अ नाउन. फ्रेश एयर में वॉकिंग करना, इट इज अ नाउन, but act because it is the group of word, that is why it is noun phrase. So which act as a noun, that is noun phrase. Second one is adverb phrase. Adverb phrase act as an adverb. और adverb क्या होता है? जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, जो which describes about the verb. Suppose that if I say the boy laughed in a loud manner. अब बच्चा हंसा loud manner में, बहुत जोर से हंसा. Now here in a loud manner, it is the phrase and it is describing about what? About laughing. कैसे हंसा? In a loud manner. और जो laughing के बारे में बता रहा है, laughing means action या verb, जो verb के बारे में बताएगा वो adverb होगा. तो in a loud manner is the adverb, acting like a adverb. It is not a adverb, but it is a adverb phrase. In the same way, adjective phrase, जो phrases adjective की तरह act करते हैं. और adjective क्या होते हैं? Those words which describes about a noun or a pronoun, जो किसी noun को जैसे यहाँ adverb जो है verb को describe करता है. In that way, adjective always describes a noun or a pronoun. We bought a necklace made of gold. अब यहाँ देखिए necklace made of gold, ये necklace को describe कर रहा है. necklace is a noun. जो necklace को describe कर रहा है, that is means that is describing a noun, and which word which describes a noun is adjective. So necklace made of gold is acting like adjective, but it is not the adjective, but it is the group of words, that is why it is adjective phrase. So very easy chapter, we can do it very nicely. Second one is clauses. What are clauses? See here, phrases 4-5 conditions I have written. Clauses also there are 4-5 conditions. Compare it. You study by comparing both of them. It is also group of words, it is also group of words. Clauses. Clause is also a part of sentence. Phrases is also the part of sentence. But third condition, clause should have a finite verb, and here it does not have the finite verb. Phrase do not have the finite verb, but clause has a finite verb. It is the basic difference. This and this is same in both the cases, but finite verb, it should be there, and it is not there. Fourth, phrase cannot stand on its own, but clauses can stand or cannot stand. क्लॉज जो है वो अपने ऊपर डिपेंड हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पर फ्रेज को हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा. एंड हियर क्लॉजेस इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. जब जैसे मैं कहूँ आई नो द बॉय हु वाज सिटिंग हियर,
अब यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, आई नो द बॉय एंड दूसरा है हु वाज सिटिंग हियर। हु वाज सिटिंग हियर भी क्लॉज है क्योंकि उसमें फाइनाइट वर्ब है सिटिंग, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो हु वाज सिटिंग हियर भी क्लॉज है, लेकिन अगर मैं कहूँ हु वाज सिटिंग हियर तो इसका मतलब तो आ रहा है, बट ये पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसको किसी के सहारे की जरूरत है। इट इज नॉट स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन। बट इसमें जो पहला वाला क्लॉज है आई नो द बॉय, वो डिपेंड कर रहा है, वो पूरी तरीके से अपने ऊपर, अगर उसके आगे हम नहीं भी लगाते हैं, वी आर नॉट एडिंग हु वाज सिटिंग हियर, तो भी आई नो द बॉय इज द कंप्लीट मीनिंग। तो आई नो द बॉय ये क्लॉज जो है ये इट इज स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन, और जो उसका दूसरा पार्ट है हु वाज सिटिंग हियर ये भी क्लॉज है, बट इट इज नॉट स्टैंडिंग अपॉन इट्स ओन, इसको किसी के सहारे की जरूरत है। तो क्लॉज में दोनों कंडीशन फॉलो होगी, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, बट फ्रेज cannot stand on its own, and clause can stand and cannot stand, both the situation are there. So these are the some things, the conditions of being a clause. Now as there were a noun phrase, adverb phrase and adjective phrase in the phrase of chapter of phrases, here also noun clause, adverb clause and adjective clause. Those clause which act as a noun, they are noun clause. Suppose that he thought that his dog was lost, उसने सोचा, क्या सोचा कि उसका डॉग खो गया, दैट हिज डॉग वाज लॉस्ट, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि उसने क्या सोचा उसकी सोच बताई जा रही है, एंड दैट इज अ नाउन, दैट हिज डॉग वाज लॉस्ट, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, दैट इज व्हाई इट इज अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्यों है, नाउन फ्रेज क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब है, इजंट इट, लॉस्ट इज द फाइनाइट वर्ब, ठीक है, बट फ्रेज में फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। इन दैट वे आई नो दैट यू लाइक कॉमिक्स, अब देखिए आई नो दैट यू लाइक कॉमिक्स, दैट यू लाइक, मुझे पता है, क्या पता है कि तुम्हें कॉमिक्स पसंद है, तो दैट यू नो दैट यू लाइक कॉमिक्स, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन। क्या पता है कि तुमको कॉमिक्स पसंद है, दैट इज अ नाउन, मीन्स ये एक बात हो गई जो जिसके बारे में उसको पता है, दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, और जो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है और इसमें फाइनाइट वर्ब भी है लाइक, दैट इज व्हाई इट इज द फ्रेज एंड इट इज द एक्टिंग एज अ नाउन, दैट इज व्हाई इट इज नाउन क्लॉज। सेकंड वन इज एडवर्ब क्लॉज, इट एक्ट्स ऑलवेज एक्ट्स एज अ एडवर्ब, और एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब को डिस्क्राइब करें, जैसे यू शुड नॉट टॉक व्हेन आई एम टीचिंग इन क्लास। अब यहाँ देखिए व्हेन आई एम टीचिंग इन क्लास, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, तो ये कब की बात हो रही है, जब मतलब जब तुम बात करते हो उस समय की बात, ये तुमको उस समय, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय तुमको बात नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है टॉक जो है वो एक्शन हो गया, वर्ब हो गया, और उसके बारे में ये बता रहा है व्हेन आई एम टॉक टीचिंग इन द क्लास, दैट इज व्हाई इट इज द एडवर्ब क्लॉज, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द वर्ब। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा वो एडवर्ब होगा, और बिकॉज इट इज इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फाइनाइट वर्ब, दैट इज व्हाई इट इज एडवर्ब क्लॉज। आई एम स्टैंडिंग वेयर आई कैन सी हिम, अब ये देखिए आई एम स्टैंडिंग वेयर आई कैन सी हिम, वेयर आई कैन सी हिम जो है मैं वहां खड़ा हूं जहां से मैं उसको देख सकता हूं, वेयर आई कैन सी हिम किसके बारे में है, खड़े होने की सिचुएशन बता रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूं जहां से मैं उसको देख सकता हूं, तो ये स्टैंडिंग वर्ब है और वर्ब के बारे में ही ये सारी बातें आ रही हैं, कहां से देख सकता हूं, जहां मैं खड़ा हूं, तो दैट इज व्हाई जो वर्ब के बारे में बताएगा वो एडवर्ब होगा, और बिकॉज इट इज द क्लॉज, दैट इज व्हाई इट इज एडवर्ब क्लॉज। इन द सेम वे एडजेक्टिव क्लॉज, व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करें, और एडजेक्टिव की तरह कौन से वर्ड्स एक्ट करते हैं, विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसे एडवर्ब वो होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, इन दैट वे एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब्स अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसे दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, अब यहाँ पर हु हेल्प्ड मी, ये वो बच्चा है जिसने मेरी हेल्प किया, हु हेल्प्ड मी किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है, और बॉय इज अ नाउन, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होगा, तो हु हेल्प्ड मी इज एक्टिंग एज एडजेक्टिव, लेकिन ये क्लॉज के फॉर्म में है, दैट इज व्हाई इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। सेकंड, द केक्स व्हिच आई बॉट हैव बीन ईटन, जो केक्स मैं खरीद कर लाया था वो सब खा लिया गया है। नाउ द केक्स व्हिच आई बॉट, व्हिच आई बॉट, सो व्हिच आई बॉट किसके बारे में, जो केक मैं खरीद के लाया, व्हिच आई बॉट किसके बारे में है, केक के बारे में, क्या खरीद के लाया, केक, एंड केक इज अ नाउन, एंड व्हिच आई बॉट इज डिस्क्राइबिंग द अबाउट द केक, इट इज एक्टिंग लाइक एडजेक्टिव, दैट इज व्हाई इट इज, and it is in clause form, that is why it is adjective clause. So you have to apply your common sense also, and I believe that you will be able to do it. Thank you for watching and have a wonderful day.